more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is और इस वक्त बड़ी खबर, भारतीय सेना के हमले से खौफ में है पाकिस्तान। हवाई हमले के बाद यूएनएससी पहुंच गया पाकिस्तान, एक बार फिर यूएन के दर पर पहुंचा है। भारत के एक्शन की जानकारी पाकिस्तान ने यूएनएससी को दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
के पास रोने पहुंच गया पाकिस्तान एक बार फिर कि भारत ने उस पर एक्शन ले लिया है। पूरी दुनिया जान रही है कि भारत ने क्या एक्शन लिया है। भारत की ओर से जब एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद भारत के एनएसए ने बात की अमेरिका के एनएसए से, वहां के रक्षा से जुड़े अधिकारियों से, और तमाम स्ट्राइक और एक्शन की जानकारी साझा की गई है। अमेरिका ने भी अपने साथ की बात कह दी है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने किस तरह से एक्शन लिया, क्या एक्शन लिया और क्यों एक्शन लिया है। हालांकि पाकिस्तान एक बार फिर यूएनएससी के दर पर पहुंचा है और रोने पहुंचा है और भारत के खिलाफ मदद की गुहार लेकर एक बार फिर पहुंचा है। तो भारतीय सेना के हमले से खौफ में है इस वक्त पाकिस्तान। खलबली मची हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार दहशत में। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे, जो बहुत ही शांत नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल कूल अंदाज में दिखे, और उन्होंने चंद्रयान की बात की, उन्होंने मार्स की बात की, उन्होंने G20 की बात की, और बहुत ही शांत भाव से प्रधानमंत्री इस वर्ल्ड क्लास समिट को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में खलबली मची है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में क्या स्थिति है? यूपी में रेड अलर्ट है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस की सभी यूनिट्स पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस यूनिट्स के साथ समन्वय बनाकर अहम ठिकानों की सुरक्षा और मजबूत करने के निर्देश यूपी पुलिस को दिए गए हैं। सेना की कार्रवाई हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सिविलियंस और सिविल डिफेंस के लिए क्या आपकी ओर से निर्देश दिए गए हैं? मॉक ड्रिल के कार्यक्रम तो पहले से आयोजित थे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको देखते हुए पूरे रेड अलर्टनेस की घोषणा की गई है। और जिस तरह का भी सहयोग सैन्य बल हमसे अपेक्षित है उसके लिए भी दिया गया है। साथ साथ जितने भी सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगहें हैं या जो जहाँ पे अधिक भीड़भाड़ होती है उस पर अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ जो आवश्यक वस्तुओं के आवागमन की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी विशेष नज़र रखने के निर्देश दिए गए। सर, जैसे आपने रेड अलर्ट कहा, तो रेड अलर्ट का मतलब क्या समझे एक आम आदमी? हम लोग एकदम अलर्ट स्थिति में हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी इमरजेंसी होगी, हम भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिला के सहयोग करने के लिए तैयार हैं। समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए सर? हाँ। तो देश जो चाहता था सेना और सरकार ने वो कर दिखाया, और इधर पूरा भारत भी तैयार है। शशि त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि अब भारत में मॉक ड्रिल के लिए अनाउंसमेंट पहले कर दी गई थी, प्रशासन तैयार है, तमाम लोगों को भी कह दिया गया था कि मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए, और ऐसे में आज की जो एक्सरसाइज है वो कितनी महत्वपूर्ण है? जी, एक आज के एक्शन के साथ पिछले 7 दिनों से जो डिसीजन लिए गए और आगे भी जो डिसीजन लिए जाएंगे वो हाइब्रिड वारफेयर का बेस्ट एग्जाम्पल है। जहां ये बताते हैं क्रिमिनोलॉजी में कि मारने के 1000 तरीके, जरूरी नहीं है कि खंजर और गोली से ही मारा जाए जी। वहीं डिप्लोमेसी में भी यही कहते हैं कि बिल्कुल। और देखिए एक और मार, आर्थिक तबाही आ गई, शेयर बाजार धड़ाम। पाकिस्तान में शेयर बाजार धड़ाम हो गया, भारी गिरावट हुई है, 3000 पॉइंट्स की गिरावट हुई है सिर्फ कुछ घंटे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब ये आर्थिक तबाही की एक और तस्वीर देखिए, तबाही का एक और मंजर। न जाने कितने मंजर पाकिस्तान को देखने होंगे सर। तो मैं यही कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में ही हराया जाए। एक देश को बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि गोला बारूद का इस्तेमाल किया जाए, सैन्य बल का इस्तेमाल किया जाए जहां कैजुअल्टी हो। बिना मारे, बिना लड़ाई करे हुए भी दुश्मन को हराया जा सकता है। ये हाइब्रिड वारफेयर के कुछ एलिमेंट्स हैं, जिसका पहले तो हमने देख लिया कि पानी को रोकना और पानी को छोड़ना, कहीं सूखा और कहीं बाढ़ की हालत। दूसरा, इनके हर आने जाने के जो रास्ते हैं वो रोक देना। अभी मैं देख रहा था कि इनका इस्लामाबाद से मलेशिया जाने के लिए जो रूट इन्होंने लिया था वो इनके